ठीक है, तो पहले हम इसमें चलते हैं. सो फॉर दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, दिस इज कॉल्ड UTA 003, राइट? आई होप यू आर एबल टू सी माई स्क्रीन. यस मैम. सो इसका नाम जो है, ये आपका सब्जेक्ट का नाम है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, राइट? So computer programming is the name of this subject, right? So we will be covering the in computer programming we'll be studying about C language. ठीक है, C language जो आपने already कईयों ने पढ़ी भी होगी, and many of you may have gone through other languages also. ठीक है, so in this particular semester we will be studying C language, C programming. Fine. Okay, so this subject is for 4.0 credits. इसके जो credits रहेंगे आपके वो 4.0 credits के रहेंगे. इसमें आपके पर week में 3 lectures रहेंगे. 3L का मतलब, if you look at the syllabus also, tomorrow we'll discuss about syllabus. So 3L means 3 lectures will be covered per week, and 1P is written also in the syllabus, that 1P is for 1 practical per week. Okay, and 0T, there is no tutorial for this subject. ठीक है, तो आपके वैसे तो अभी क्या है, online we'll be conducting 3 lectures per week because this is a short semester for you and we have to cover more syllabus. Then we'll be conducting 4 lectures per week when you are offline and when you are in the campus. Fine. So basically I don't think so अभी evaluation scheme कुछ बनी है, but generally we keep our MST for 25 marks, and then जो हमारे सेशनल्स रहते हैं, सेशनल्स में हमारा जो लैब का कंपोनेंट रहता है जिसमें लैब इवैल्यूएशन होता है और हमारा क्विज होते हैं, राइट? सो दैट इज आल्सो फॉर 20 मार्क्स, एंड अदर पार्ट इज फॉर EST आपका जो एंड सेमेस्टर टेस्ट रहता है. MST is for mid semester test. However, whatever will be the instructions from the dean office for your evaluation, that will be conveyed to you through the LMS also. Fine. Okay, so after that we will be first. Okay, so many of you might have studied about many programming languages. So you might be knowing, many of you might be knowing about object oriented programming also, जिसमें हम C++ कवर करते हैं या Python कवर करते हैं या फिर Java भी कवर करते हैं, है ना? वो पहले हमारा क्या है, C++ है ना? तो जैसे आपने Java, कईयों ने हो सकता है Java किया हो, कईयों ने हो सकता है कि Python किया हो सकता है आपने कोई और Ruby on Rails या कुछ और भी, आप R में कुछ अपना कोड करते हैं. So whatever, even if you do not know anything about any language, any programming language, this class will be अच्छा, एक बार एक काम करो, you just raise your hand how many of you know any programming language. अभी के लिए just raise your hand, any programming language. I'll check. ठीक है, okay. अच्छा, lower down your hand. Everyone, lower down your hand. And you now those people raise your hand, those who do not know anything about programming language. ये क्या बात कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है, क्या बोल रहे हैं ये? Okay. अब ये बीच में, दोनों में नहीं, हाथ खड़ा करना, ये देख लेना. So there are a lot of number students. ठीक है, you can, everybody can lower down your hand. ठीक है, so this class will go on like if you do not know anything, right? If you know anything, already know anything about the programming language, then that is in favor. But if you do not know anything, so this class is best for you. ठीक है, आपको वैसे ही समझाया जाएगा कि आपको कुछ नहीं पता, बिकॉज एवरीबडी नोज कि आप अभी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पे पूरा ये सब फोकस करके आए हैं. ठीक है, ओके. सो if I say that I know only Hindi language, ठीक है, मेरे को सिर्फ हिंदी लैंग्वेज आती है, और आपको जो आती है वो सिर्फ फ्रेंच आती है. ठीक है, so you know only French language,
and I have to communicate to you. I know only Hindi language and you know only French language. So I have to communicate to you, right? So what I'll be requiring, आपको मुझे हिंदी आती है, मुझे फ्रेंच नहीं आती, आपको सिर्फ फ्रेंच आती है, आपको हिंदी नहीं आती, right? So if we both have to communicate to each other, then we'll be requiring a, what do we need? Translator. So we'll be requiring a translator, right? So ऐसे ही इसी सिनेरियो में जो if I am a user और जो यहाँ पर मैं कंप्यूटर को लेती हूँ, here is a computer, तो कंप्यूटर जो है as a user I can know any language. जैसे मेरे पास में if I am in India I know हिंदी, मैं फ्रांस में हूँ मेरे को फ्रेंच आती होगी, I can, यूजर तो हमारा एक कंप्यूटर का कहीं पे भी हो सकता है, बट जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर बेसिकली नोज द लैंग्वेज ऑफ बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है? सो सम ऑफ यू माइट इवन डू नॉट नो कि यहाँ सिर्फ हम बाइनरी लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं। जो कंप्यूटर में और जो उसको लैंग्वेज आती है दैट इज द बाइनरी लैंग्वेज, मतलब बाइनरी मतलब 0 and 1, सो इट नोज ओनली द लैंग्वेज ऑफ 0 and 1, फाइन। तो 0 and 1 में जैसे हम हार्डवेयर में अपने सिस्टम में सर्किट्स बनाते हैं, 0 मीन्स ऑफ होता है, 1 मीन्स ऑन होता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस 0 and 1, कॉम्बिनेशन ऑफ दिस 0 and 1, होल ऑफ द कंप्यूटर वर्क्स, ठीक है? Yes, that we will see. अभी आज सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, so I just want you to be aware कि क्या ये कंप्यूटर लैंग्वेज होता है और होती है, और इसमें हम आगे कैसे हम लैब में एटलीस्ट आप बैठने लायक हो जाओ, ताकि वहां पर भी आपको समझ में आए कि क्या हो रहा है, ठीक है? राइट? तो यहाँ पर हम फंडामेंटल्स खूब सारे इसमें पढ़ेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है ये 0 1, क्या इसमें आगे इसमें कैसे नंबर्स बनाते हैं, ठीक है? तो अब हमारे पास में कंप्यूटर को सिर्फ 0 and 1 आता है। अब यहाँ पर मेरे पास में अब यूजर को यहाँ पर समझने के लिए, इस तक यहाँ तक पहुंचने के लिए अगेन वी विल बी यूजिंग अ ट्रांसलेटर। यस, वी विल बी यूजिंग अ ट्रांसलेटर। अब if I am a user and I have to see, I am not talking about how to interact with the computer. See, मोबाइल फोन इज ऑल्सो अ कंप्यूटर। आपको मोबाइल के लिए, मोबाइल को यूज करने के लिए कोई पर्टिकुलर एक्स्ट्रा चीज, कोई स्किल सेट लेने की जरूरत नहीं है, राइट? तो उसमें आपको क्या होता है, तो जो आपको फोन अगर आप यूज करते हैं तो उसका कोई आपको एक्स्ट्रा स्किल सेट यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती, राइट? तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द यूजेज ऑफ फोन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एज अ डेवलपर। सो इफ यू हैव टू रीच टू दिस 0 and 1, सो यू विल बी रिक्वायरिंग अ ट्रांसलेटर, ठीक है? अगर मेरे को कुछ प्रोग्राम बनाना है, अब यहाँ पर जो एक ट्रांसलेटर होता है उसको हम बोलते हैं कंपाइलर या फिर interpreter. We will be talking about this compiler and interpreter in detail also. अभी सिर्फ समझने के लिए आप इसको देखिए, ठीक है? So a translator that will be translating आपका जो कोड है, आप यहाँ पर यूजर जो भी कोड लिखेगा, मतलब कुछ प्रोग्राम लिखेगा, तो उसको आपको कैसे कन्वर्ट करना है, वो कैसे अपने आप से कौन कन्वर्ट करेगा कंप्यूटर की लैंग्वेज में 0 and 1 में, वो काम कौन करेगा? वो या एक ऐसा ट्रांसलेटर काम करेगा जिसको हम इधर क्या बोलते हैं, कंपाइलर या फिर एक इंटरप्रेटर। दीज आर द ट्रांसलेटर्स, ठीक है? यस। अब जो हमारे पास में सी प्रोग्रामिंग, सी के लिए जैसे हम C++, जावा, उसके लिए अगर हम यूज करते हैं जो ट्रांसलेटर, उसको हम कंपाइलर बोलते हैं, ठीक? और जो जैसे पाइथन है उसके लिए हम इंटरप्रेटर यूज करते हैं। मतलब है तो ट्रांसलेटर, दे विल बी ट्रांसलेटिंग योर कोड एंड इट विल रीच द कंप्यूटर सिस्टम, इट विल बी नाउ अंडर इट, दे विल मेक योर प्रोग्राम अंडरस्टैंडेबल टू द कंप्यूटर सिस्टम, जिसको सिर्फ बाइनरी की लैंग्वेज पता है, ठीक है? तो अभी हमारे पास में या तो हम कंपाइलर यूज करेंगे या तो इंटरप्रेटर यूज करेंगे एज ए ट्रांसलेटर, राइट? For this C programming, right now whatever we are using, C programming के लिए हमें एक कंपाइलर की जरूरत पड़ती है,
और इस समय जो मैंने ओपन किया हुआ है दैट इज डेव C++ कंपाइलर। ठीक है, ये जो मैंने ओपन किया हुआ है ना यहाँ पर वेयर आई एम टाइपिंग दीज थिंग्स, दैट इज डेव C++ कंपाइलर। इफ यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन, तो यहाँ ऊपर जो है ना, यहाँ ये लिखा है डेव C++ 5.11, दिस इज द वर्जन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आप अपने सिस्टम पे जैसे भी आप अपना कोई सिस्टम यूज कर रहे हैं, कोई लैपटॉप या कंप्यूटर सिस्टम यूज कर रहे हैं, उस पे आप कोई भी एक कंपाइलर आप जहां आप सी प्रोग्रामिंग सी का कोड आप चला सकते हैं, वो आप कंपाइलर को इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, पहले आप डाउनलोड करेंगे और फिर इंस्टॉल करेंगे। आई होप यू आर अवेयर अबाउट द टर्म्स डाउनलोड एंड इंस्टॉलेशन, राइट? ठीक है, तो जैसे आप फोन में करते हैं वैसे आप अपने सिस्टम में करेंगे। अगर आपके पास में जैसे यहाँ पर आप डेव C++ कंपाइलर राइट नाउ जो मेरे पास में है वो डेव C++ कंपाइलर है, इस पे सी प्रोग्राम्स चल जाएंगे। फिर आपके पास में कोड ब्लॉक्स होता है, कोड ब्लॉक्स पे भी आप चला सकते हो। तो ये सब आपके पास में एक विजुअल स्टूडियो है, किसी ने पूछा था कल मेरे से लैब में, वो भी आप उसमें यूज कर सकते हो। ठीक है, तो कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म, एक GDB होता है, GDB और कौन सा GDB में चल जाते हैं, हाँ GDB में भी है। अच्छा, तो ये सब आप अपने इधर इंस्टॉल कर सकते हो अपने सिस्टम पे। ठीक है, तो उस पे आपको प्रोग्राम्स जो भी आपके परफॉर्म करने पड़ेंगे। अच्छा, अब आप कहोगे कि कई कह सकते हैं कि हमें क्या करने की जरूरत है इसमें, लेकिन ये आपको इन द लॉन्गर रन, इन दिस सेमेस्टर ऑल्सो एंड इन नेक्स्ट सेमेस्टर ऑल्सो आपको ये काम आएगा। ठीक है, अगर आपके पास में यू कैन सर्च फॉर, ये GDB तो लिनक्स में अपने आप से चल जाता है, तो ये आप अपना विंडोज पे अगर ये आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, और मैक के लिए आप देख लेना, सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा ऑनलाइन। ठीक है, दूसरा अगर आपके पास में कंप्यूटर सिस्टम नहीं है, कोई लैपटॉप ऐसे नहीं है, तो उसके लिए ये नहीं है कि आप स्पेशली इसके लिए खरीद के लाओगे, तो आप अपने एंड्रॉयड फोन पे आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। एक ऐप है CPP Droid करके। ठीक है, सो ये आपके फोन पे इंस्टॉल हो जाएगी। हेयर यू कैन ऑल्सो मेक योर ओन C एंड C++ के प्रोग्राम्स। ठीक है, तो उसमें भी आप अपना एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपने प्रोग्राम्स को। यस आर्यन बोलिए। मैम, ये एंड्रॉइड वाले में आपको नेट की जरूरत पड़ेगी मतलब कॉन्स्टेंटली? नहीं, आई डोंट थिंक सो। CPP Droid के लिए ना नहीं पड़ेगी। ठीक है, हाँ ठीक है, तो ये आप अपना इंस्टॉल कर लेना। अच्छा, यहाँ पर अभी जो मैं यहाँ पर कुछ परफॉर्म करूंगी या जैसे भी हम यहाँ पर कुछ रन करेंगे, सो आई विल बी डूइंग ऑन दिस डेव C++। और दूसरा जब आप सो वी हैव अनदर प्लेटफॉर्म आल्सो दैट इज कॉल्ड eBox। ओके, दैट इज एक्चुअली वेबसाइट जो eBox एक कंपनी है। सो वी हैव a tie-up with this eBox company, so they'll be providing you the content also for C programming, and where you can get hands on the programs also। कुछ क्विज भी उसमें होगा, कुछ जंबल अप कोड होगा लेटर ऑन आपकी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो हम मेनली अपना लैब का इम्प्लीमेंटेशन पार्ट भी बाद में eBox पे करेंगे, because you are right now you have joined into this system, so आपके यहाँ पर IDs पहले create होंगे यहाँ पर, then you will be given a login, particular login and password, and then you have to switch to eBox। so whatever you will be performing that will be done on eBox। तो eBox में आपका एक particular अपना personal login बना होगा, जिसमें आपके पास में different modules होंगे। वो जब आपका eBox चलेगा then I'll explain। ठीक है, अभी आपको उसके बारे में कुछ पता नहीं चलेगा, अगर मैं कुछ बताऊंगी भी तो उसमें आपके पास आपकी जो इवैल्यूएशन होगी दैट विल बी डन ऑन eBox। हाउएवर अगर कुछ उसमें आपको देखो जो कोड होता है ना, वो तो यहाँ पर किसी भी आपके सिस्टम में या कैसे भी चलना चाहिए, राइट? तो आपको बस एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा eBox, जहां पर आपकी कुछ इवैल्यूएशंस भी कंडक्ट होंगी, सो दैट विल बी कंपल्सरी to go through this eBox content also,
right? Because evaluations will also be done on eBox. But side by side आपको इन compilers पे, ये जो आपके system पे आपके installed होंगे या phone पे आपने install किया होगा, so there you can practice. ठीक है? Okay, so earlier we were talking about the language. ठीक है? So if I talk about, ठीक है, तो मैं अभी if I talk about any language, मैं language के बारे में बात करती हूँ. इंग्लिश के बारे में अगर मैं बात करती हूँ, so it is having some character set. character set का मतलब इसमें कुछ अल्फाबेट्स होते हैं, है ना, अल्फाबेट्स होते हैं, और आप इसमें और क्या होता है, ये कुछ बाकी आप नंबर्स को यूज कर सकते हो, राइट? तो आपके कुछ क्वेश्चन मार्क्स कुछ होते हैं, या कॉमा आप कहीं पे लगाते हो, दैट इज अकॉर्डिंग टू द ग्रामर, राइट? आई एम जस्ट टेलिंग यू ऑल दीज थिंग्स बिकॉज यू आर वेरी न्यू टू दिस प्रोग्रामिंग वर्ल्ड, ठीक है? फ्यू ऑफ यू आर वेरी न्यू. तो जैसे हमारे पास में कुछ अल्फाबेट्स होते हैं, ये हम ए बी सी से हमने कुछ फिर सेंटेंसेस बनाने सीखे, राइट? सो नाउ आई कैन क्रिएट अ वर्ड आल्सो लाइक लैंग्वेज आई हैव रिटन, या कोई सेंटेंस बना सकती हूँ. ऐसे ही जब हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, दैट इज ऑल्सो हैविंग वन पर्टिकुलर कैरेक्टर सेट. ठीक है? कि उसमें क्या रहेगा, जो मैं आपको जो भी आज करवा रही हूँ, इट इज ओनली अ काइंड ऑफ प्रैक्टिकल थिंग जो मैं आपको बता रही हूँ. However, you will be also getting the content. आपको पढ़ने के लिए भी ये पूरी PPTs इसमें हम पढ़ेंगे कि जो भी मैं आपको पूरा बता रही हूँ कि करेक्टर सेट क्या होता है, उसमें कौन कौन से कहाँ तक डिजिट्स होते हैं, क्या आपके करेक्टर सेट रहेगा. ठीक है? तो जैसे मैंने अगर बताया कि एक लैंग्वेज को बनाने के लिए आपके पास में कुछ अल्फाबेट्स रिक्वायर्ड होती हैं. हिंदी में आपके पास में वो अ आ ई क ख ग ऐसा कुछ आपको रिक्वायर्ड होगा, राइट? तो आपके पास में जो भी आपको रिक्वायर्ड है, इसमें कुछ और भी आप इंक्लूड कर सकते हो अकॉर्डिंग टू आपको आता होगा आगे. तो आप जो भी आपके पास में ये सब करेक्टर्स, ये सब जो आपकी लैंग्वेज को बनाते हैं, उसको हम करेक्टर सेट बोल देते हैं. ठीक है? तो जैसे अब यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाऊंगी सी का, तो उसमें वी विल सी. So this C program will also have some character set. So I'm writing this character set. Character set का मतलब क्या होता है? Character set मतलब जो वो सारी चीजें जो कुछ characters हैं उसमें, कुछ उसमें characters होंगे. मेरे जरा स्पेलिंग का इसमें देख लेना. ठीक है? करेक्टर्स होंगे, कुछ नंबर्स उसमें इंक्लूड हो सकते हैं, कुछ सिंबल्स हो सकते हैं, आपके स्पेशल सिंबल्स हो सकते हैं जो आप यूज करते हैं आपके कीबोर्ड पे. तो वो सब हम उसका कॉम्बिनेशन बना के हम एक कुछ प्रोग्राम एक लिख सकते हैं. जैसे एक लैंग्वेज होती है ना, तो लैंग्वेज में आप कुछ भी वहां पर लिख सकते हो, एक पूरा सेंटेंस लिख सकते हो कॉमा डाल के, क्वेश्चन मार्क डाल के, राइट? सो विल बी यूजिंग द करेक्टर सेट, और मतलब आपके कीबोर्ड पे जो भी आपके यहाँ कीज हैं उसके ऊपर हम कॉम्बिनेशन विल सी कि हमारा क्या वर्ड्स बनते हैं, कैसे क्या होता है. ठीक है? सो एक नॉर्मल एक शॉर्ट प्रोग्राम बनाने के लिए फर्स्ट आई विल बी राइटिंग हैश. आई हैव टू टाइप दिस हैश इंक्लूड. तो हैश लिखा है मैंने, देन आई हैव पुट इंक्लूड. दिस इज इंग्लिश वर्ड, राइट? इंक्लूड INCLUDE. और फिर उसके बाद में मैंने एक एंगुलर ब्रैकेट डालनी है. एंगुलर ब्रैकेट मतलब ये जो आपका लेस देन का साइन होता है. तो इस कंपाइलर में जब मैं ये डालती हूँ तो ऑलरेडी ये राइट हैंड साइड में भी अपने आप से आ जाता है. इसका मतलब है कि आपने ओपन ये ब्रैकेट डाली है, ओपन एंगुलर ब्रैकेट, एंड देन ये क्लोजिंग एंगुलर ब्रैकेट. ठीक है? तो इसके अंदर मैं लिख रही हूँ कुछ stdio.h, राइट? तो ये आपको अभी ऐसे ही इसको देखना है, पढ़ना है, राइट? हैश मैंने लिखा हैश, देन इंक्लूड, और फिर मैंने एंगुलर ब्रैकेट को ओपन किया यहाँ पर और फिर क्लोज किया है, और उसके अंदर मैंने लिखा है stdio.h. फाइन. ओके. तो इसके बाद में मैं लिखती हूँ int main, और फिर मैंने एक राउंड ब्रैकेट को ओपन किया और फिर उसको क्लोज कर दिया. ठीक है? यहाँ राउंड ब्रैकेट है, ऊपर थी आपके पास में एंगुलर ब्रैकेट. ओके. तो यहाँ अब इसके नीचे
एंटर की से मैं नेक्स्ट लाइन पे जाके अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक कर्ली ब्रेस डाल रही हूँ और उसको क्लोज कर रही हूँ। ठीक है, तो जो भी आपका कोड होगा वो यहाँ पर इसके अंदर हम कोड लिखेंगे। मतलब कोड क्या होता है वैसे, नॉर्मली कोड क्या होता है बताओ? अगर मैं कोड या कुछ एक प्रोग्राम, आपने अपने स्कूल्स में पहले पढ़ा होगा कि जो प्रोग्राम होता है वो एक्चुअली इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, राइट? इंस्ट्रक्शंस, इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। वो क्या होता है, यू आर गिविंग सम इंस्ट्रक्शन टू योर सिस्टम, राइट? सिस्टम मीन्स कंप्यूटर को, और एंड इट विल बी परफॉर्मिंग समथिंग, फाइन। So these are the set of instructions. So whatever will be the set of instruction that will I'll be writing here, fine. ठीक है, अब ये जो है ऊपर ये लिखा क्या है, क्या होता है ये? तो ये जो हैश होता है, मैंने ऊपर जो हैश लिखा है, इसका मतलब इट इज एक्चुअली अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ठीक है, दिस इज कॉल्ड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, फाइन। अब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का मतलब क्या, पढ़ने से क्या पता चल रहा है? प्री प्रोसेसर कि कुछ भी प्रोसेस करने से पहले आप इसको प्रोसेस कर दीजिए। क्या प्रोसेस करना है, ठीक है, वो इसके आगे आएगा। ठीक, तो इसका अगर मैं इसको लगाती हूँ, इसका मतलब क्या है कि कुछ भी और आगे फर्दर जो भी यहाँ पर रहेगा, इस यहाँ पर उसको प्रोसेस करने से पहले आप इस लाइन को पहले प्रोसेस कर दीजिए। ठीक है, किसको प्रोसेस करना है? नेक्स्ट इज क्या? इंक्लूड। इंक्लूड का मतलब क्या होता है? नाउ दिस इज इंग्लिश वर्ड, वी आर आल्सो इंक्लूडिंग सम इंग्लिश वर्ड्स आल्सो इन दिस सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो ये हमारी एक अलग लैंग्वेज है जिसमें हम कुछ ना कुछ थोड़ा इंग्लिश का हमने इसमें डाल रखा है, एंड देयर आर सम अदर सिंबल्स। तो इंक्लूड का मतलब क्या है? इट इज इंग्लिश वर्ड। इंक्लूड मतलब इंक्लूजन ऑफ समथिंग, आप किसी चीज को इसमें डाल दीजिए। तो किसको डालना है? इंक्लूड, यू नो, इंक्लूजन ऑफ समथिंग, राइट? किसको डालना है? तो वो मैंने एंगुलर ब्रैकेट में लिखना है। जिसको भी आपको डालना है, कुछ पहले प्रोसेस करना है, राइट, तो वो आप इन एंगुलर ब्रैकेट्स में लिख दीजिए। तो किसको करना है? stdio.h, फाइन। व्हाट इज दिस stdio.h? अच्छा, सम ऑफ यू में से लेटर ऑन, अब इसको ध्यान से पढ़ो, क्या है stdio.h? ये स्टूडियो नहीं है, यू कहीं नहीं है। सम ऑफ यू कैन से कि स्टूडियो, मैम वो स्टूडियो नहीं लिखा, studio.h नहीं लिखा। नो, दिस इज नॉट स्टूडियो, दिस इज stdio.h। इसकी फुल फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ठीक है, std इज फॉर स्टैंडर्ड, std इज फॉर स्टैंडर्ड, I is for input and O is for output. ठीक, so standard input output. Okay, so do you know कि जब हम कोई गाना सुनते हैं तो उस कोई आपने फाइल को डाउनलोड किया है, कोई गाना डाउनलोड किया है, तो उसका एक्सटेंशन क्या रहता है उस फाइल का? डू यू नो अबाउट द एक्सटेंशन? .mp3। हाँ, .mp3। आप कहते हो कि हाँ मुझे MP3 की फॉर्म में दे दो ये गाना। और आपकी जो वीडियोस रहती हैं, मूवीज देखते हो, वो कौन सी फॉर्मेट में? MP4। .mp4। और फिर जब आप, अगर मैंने आपको बोला कि आप अपना रिज्यूम बना के दो, CV बना के दो मुझे, तो वो कौन से फॉर्मेट में होगा? .doc, डॉक्यूमेंट में होगा, या आप उसको PDF में सेव करके मेरे को दे देंगे, है ना? तो ये सब क्या है? ये जो डॉट के बाद में जो लगा है, व्हाट इज दिस? दीज आर द फाइल फॉर्मेट्स, दीज आर द फाइल फॉर्मेट्स। यस, ठीक है, ये हमारे फाइल फॉर्मेट्स होते हैं, है ना? तो अब आप ये देखो, ये पीछे ये जो फाइल है stdio.h, ये क्या है? दिस इज ऑल्सो फाइल। यस, तो .h का मतलब यहाँ पर क्या है? .h इज फॉर हेडर फाइल, हेडर फाइल। Okay, so .h is for the header file. ठीक, so this is for document। ये अलग अलग जैसे फाइल फॉर्मेट्स होते हैं, तो ऐसे ये जो .h अगर मैंने लगा दिया तो this is called a header file। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो stdio है, that is a standard input output file, और ये .h it is a header file, right? यू से दिस, ये वाली फाइल, गाने वाली फाइल को, ये MP3 फाइल है, ये MP4 फाइल है, ये डॉक्यूमेंट है, ये PDF फाइल है, बट दिस इज द .h मींस दिस इज द हेडर फाइल।
ठीक है, हम थ्योरी में इसमें पढ़ेंगे कि क्या होता है, कैसे इसको क्या क्या इसमें करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया है। तो ये हम इसको क्यों इंक्लूड करते हैं, STDIO, ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, ये हमें हर प्रोग्राम में इसको इंक्लूड करना ही पड़ेगा। ऊपर फर्स्ट लाइन में ये इसको तो रट लो कि ये लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें बेसिकली इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस तो परफॉर्म करने ही पड़ते हैं। आप अगर कुछ यूजर से देखो, कैलकुलेटर में अगर आप कुछ आपको कैलकुलेट करना है दो वैल्यूज को, देन एज अ यूजर यू विल बी गिविंग टू नंबर्स, राइट, and output that will be input, right? If you are giving two numbers, then आपको जो result show होगा वो that will be the output that will be shown on the screen. So basic operations ये हम input and output तो हम perform करते ही हैं, right? So that is why I'll be including this stdio.h in every program. ठीक है, okay, so next is int main. So यहाँ पर sometimes I have void also, rather than int I can write void also, right? void का मतलब होता है खाली, कुछ नहीं, ठीक है। और यहाँ जो मैंने int लिखा था void, या फिर मैंने int लिखा है, ये सब मेरे पास में, इसको हम क्या बोलते हैं, these are the return types, these are the return types, fine। तो return type इसको हम बोलते हैं कि एक फंक्शन के आगे हम लगाते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना देखो कि रिटर्न टाइप होता है, तो इनमें से कुछ ना कुछ तो मुझे लिखना पड़ेगा। void लिखूंगी तो यहाँ ऐसे एज इट इज रहेगा। अगर मैं int लिखती हूँ, some of the compilers will ask you to return something rather than void, they will ask you to write int, you return something, int main। तो अगर मुझे यहाँ int लिखना है तो कंपल्सरी यहाँ जो करली ब्रेस मेरी खत्म हो रही है, मतलब यहाँ जो कोड खत्म होगा उससे पहले आपको एक रिटर्न 0 लिखना पड़ेगा, ठीक है, रिटर्न 0, फाइन, ठीक है। Yes, ma'am. Okay, so either you can write void, but some compilers will ask you to return something, then you have to put int, ठीक है। तो हर प्रोग्राम में मैं भी यहाँ int main तो लिखूंगी और लास्ट में रिटर्न 0 लिखूंगी, ठीक है। ओके, तो जैसे हमारे पास में इंग्लिश में, इफ आई एम राइटिंग इंग्लिश, देन उसमें फुल स्टॉप हम यूज करते हैं, फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द लाइन। आपको कैसे पता चलेगा इफ आई एम राइटिंग अ फुल सेंटेंस, हाउ विल यू नो कि आपका सेंटेंस कहाँ पर खत्म हो रहा है, दैट विल यू विल बी नोइंग विद द फुल स्टॉप, है ना। ऐसे हिंदी में जैसे हम पूर्ण विराम यूज करते हैं, तो यहाँ हम सी लैंग्वेज में जब भी एट द एंड ऑफ द लाइन, जब मेरा एंड ऑफ द लाइन होगा, एंड ऑफ द लाइन पे मैं यूज करूंगी सेमीकोलन। तो अब आप ये देखो, ये मैंने रिटर्न 0 लिखा है, तो यहाँ ये अगर लाइन एंड हो रही है, मैं इसको बता रही हूँ कि ये लाइन एंड है, तो यहाँ मैंने सेमीकोलन डाला है, ठीक है, यस। अब इसके अंदर और क्या लिखना होता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, बिकॉज टाइम इज ऑलरेडी ओवर, फाइन। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव टॉट यू। Yes, ma'am. मैम Yes, void और ma'am. int फिर से बता दो एक बार। void is empty, it is इसका मतलब है कि कुछ नहीं रिटर्न हो रहा है। अच्छा, मेन के बारे में हम भूल गए हैं, रुको। मेन जो होता है, मेन का मतलब क्या इंग्लिश में क्या होता है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। तो मेन के साथ में हमने यहाँ राउंड ब्रैकेट लगानी है, दिस इज अ फंक्शन। आप अभी के लिए जिसको कुछ नहीं पता, तो अभी सिर्फ आप इसको याद रखिए कि मेन फंक्शन एक होता है, उसके साथ हम राउंड ब्रैकेट ऐसे लगाते हैं, ठीक है। और यही फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। मैंने इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों बोला, कि आप जो भी इसके अंदर लिखेंगे, बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ द मेन, यहाँ मैंने शुरू किया है और यहाँ इसको मैंने खत्म किया। whatever will be the content of this main, ये यहाँ कुछ भी मैं लिखूंगी, that will be part of the main function। तो इसी को हम एग्जीक्यूट करेंगे। वो ऑपरेटिंग सिस्टम भी हमारा, it also looks for the main function for the code to get executed, ठीक है। तो ये जो मैंने ऊपर लिखा है ना, ये आपका कोड है, इसमें हमें और डालना है बहुत कुछ, अभी ऐसा कुछ नहीं इसमें बना ज्यादा, इसको हम सेव करेंगे, सब देखेंगे कैसे रन करता है, बट ये इसका एक्सप्लेनेशन मैंने थोड़ा इसमें दिया है, ठीक है। आपको कुछ पूछना है तो फटाफट पूछिए, इसके बाद। यस शिवंकर, बोलिए फटाफट।
मैम अगर इंट की जगह हम void यूज करें तो फिर हाँ ये कर लो, कोई बात, तो रिटर्न रि- 0 नहीं लिखना। नो। ओके मैम।